بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلند الصلوات اللهم اللهم صل صل على على محمد وعلى محمد. دعائے خالق لم یزل سے کہ بطفیل معصومین علیہ السلام آج کی یہ مجلس جو ولایت علی 313 کے وساطت سے مومنین کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے، سرکار ولی العصر سیدہ کونین اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس جمیلہ پہ ہمارے برادر ذی وقار میری مراد سید انتصار شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کے اہل خانہ، ان کے دوست احباب، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اس مجلس کو دیکھا اور سنا جائے، بعد میں بھی سننے والے اور اس وقت بھی سننے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شہزادی کونین علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، عزائے حسین، ولایت علی ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے۔ میرا اور آپ کا شمار ناصرین سرکار ولی العصر۔ آج کی یہ مجلس، جیسا کہ آپ مجلس کے عنوان سے واقف ہیں، آج کی یہ مجلس برپا کی جا رہی ہے سفیر حسین ابن علی باب الحوائج سرکار حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، ان کی بارگاہ میں ہدیہ کی جا رہی ہے۔ میں نے اس شہنشاہ پہ گفتگو کرنے کے لیے خداوند متعال کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید سے ایک آیہ کریمہ کا سہارا لیا ہے، جس میں خدا اپنے نبی کی بھیجنے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے والذی، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف ارسال کیا، بھیجا تمہاری طرف ایک رسول کو دین حق دے کے، اس لیے کہ وہ اپنے دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے، چاہے یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے اور ناگوار کیوں نہ گزرے۔ خداوند متعال نے اس آیت میں رسل کا لفظ استعمال کیا، بھیجنے کا لفظ استعمال کیا، ارسال کرنے کا لفظ استعمال کیا، جبکہ خواہ خدا نے قرآن میں والذی بعث فی الامیین کا لفظ بھی استعمال کیا، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، ہم نے تمہاری طرف اتارا، لیکن اس آیت میں خدا لفظ رسل استعمال کر رہا ہے، ہم نے تمہاری طرف بھیجا، ارسال کیا۔ جب کسی چیز کو ارسال کیا جائے، جیسا کہ ہمارے روزمرہ میں یہ لفظ عمومی طور پہ خطوط اور پیغامات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میں اپنا خط ارسال کر رہا ہوں، میں یہ اپنا پیغام ارسال کر رہا ہوں۔ لفظ ارسال اس بات پہ عکاسی کرتا ہے کہ بھیجنے والا بھی کوئی ہو اور جس کی طرف بھیجا جائے وہاں بھی کوئی موجود ہو۔ یہاں لفظ رسول جو خدا نے استعمال کیا، یا اپنے نبیوں کے لیے جہاں لفظ رسول استعمال کیا، وہ اس بات کا عینی شاہد ہے کہ جس کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے وہ عین ذات ہے، وہ پاک ہے، وہ منزہ و مبرہ ہے ہر طرح کی خطاؤں سے، لیکن جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے ایک خاص پیغام دے کے بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ اللہ کا پیغام اس مخلوق تک پہنچائے۔ بے شک
تو لفظ رسول کی جب ہم صفات دیکھتے ہیں تو لفظ رسول کی صفات میں سے ہمیں یہ صفات میں صفت ملتی ہے کہ جو رسول ہو وہ امین ہو، وہ امانت کا خیال رکھنے والا ہو، اس کے ہاتھ میں جو پیغام دیا جائے وہ اس پیغام کا عملی مظہر بھی ہو، اس پیغام کا امین بھی ہو۔ جیسا کہ خدا نے جن جن نبیوں کے ساتھ لفظ رسول استعمال کیا، وہ تمام رسول جو کتابیں لے کے آئے، جو صحیفے لے کے آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچایا۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو۔ ادھر سے اس نے کوئی میسج دیا، انہوں نے یہ میسج کنوے کیا، بھیجا، ارسال کیا۔ لہذا وہ اللہ پاک ہے جس نے رسول بھیجا امت کی طرف، انسانیت کی طرف، ہدایت کے لیے۔ میں نے اس آیت کو موضوع سخن کیوں قرار دیا؟ تاکہ آپ کو لفظ رسول کی ایک معرفت ہو جائے کہ رسول کہتے کسے، رسول کا معیار کیا ہونا چاہیے، رسول میں صفات کیا ہونی چاہیے، رسول میں صفت یہ ہونی چاہیے کہ جس کی طرف سے پیغام لے کے جائے اس کا امین ہو، جو پیغام لے کے جائے اس پہ عملی طور پہ خود بھی نافذ ہو، اور پھر وہ پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ کیا کہنے باب الحوائج حضرت مسلم بن عقیل کے حسین ابن علی نے جب کوفہ سے روانہ کیا تو مولا حسین نے کہا، اے اہل کوفہ، میں اپنے بھائی مسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیج رہا ہوں، میں تمہاری طرف اسے اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ دیکھیے، عربوں کے ہاں خطوط دینے کے لیے، عربوں کے ہاں پیغامات دینے کے لیے جو سپاہی جاتا تھا اسے قاصد کہتے تھے، اسے برید کہتے تھے۔ اس کا کام ہوتا تھا وہ خط لیتا تھا اور جا کے خط پہنچا دیتا تھا۔ وہ یہ کام اپنی منصبی ذمہ داری سمجھ کے کرتا تھا، اس کام کی اس کو باقاعدہ اجرت ملتی تھی۔ اس کام کے لیے معیار یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ شخص کیسا ہونا چاہیے، تیز رفتار گھوڑا سوار اس کے پاس ہو، تیز رفتار گھوڑا اس کے پاس ہو، سوار ذہین ہو، اور وہ جائے اور وہ جا کے خط پہنچا دے۔ یہاں جناب مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنا قاصد نہیں بنا کے بھیجا، مولا مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ نمائندے کے لیے یہاں جو عام لفظ اس شہنشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے سفیر۔ سفیر کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی ملک اپنا سفیر دوسرے ملک میں تعینات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں اپنے ملک کے راز کا امین ہے، اپنے ملک کے مفادات کا محافظ ہے، اور وہ اس ملک میں بیٹھ کے اپنے ملک کی سالمیت کی خاطر کام کرتا ہے۔ یہاں ایک بات ابتدا میں گوش گزار کروں کہ ذہنوں سے یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے سرکار مسلم کو صرف اپنا قاصد بنا کے نہیں بھیجا، سفیر بنا کے بھیجا، اپنا رسول بنا کے بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ کیا کہنے جناب مسلم بن عقیل کے کہ امام حسین نے اپنے لشکر میں سے ایک ایسے فرد کا چناؤ کرنا تھا کہ جس کے ہاتھ میں حسین کی بیعت ہو سکے، اور جب امام اپنی بیعت لیتا ہے تو وہ بیعت امام کی نہیں ہوتی، دراصل امام کے ہاتھ پہ اللہ کی بیعت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بیعت ہو رہی تھی حسین کے ہاتھ پہ، اور حسین کی بیعت ہو رہی تھی جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ۔ جناب مسلم بن عقیل صرف حسین ابن علی کے نمائندے نہیں بلکہ توحید کے نمائندے بن کے، اللہ کے نمائندے بن کے، نمائندہ پروردگار بن کے، رسول الہی بن کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ جناب مسلم بن عقیل پہ گفتگو کرنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا، کیونکہ یہ مخصوص شخصیات اور ہستیاں ایسی ہیں جن پہ تذکرہ برائے نام ہوتا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کی زندگی کو جب بھی شروع کیا جاتا ہے تو اسے مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے ان کی زندگی کو شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے پچھلے ابواب کو نسلوں تک نہیں پہنچایا جاتا، اور ان ابواب کو محض کتابوں تک رکھا جاتا ہے، نسلوں تک نہیں پہنچایا جاتا کہ جناب مسلم بن عقیل جو ہے وہ کن صفات کے مالک۔
जनाब मुस्लिम बिन अकील की सिफात में से अगर इनका तारुफ खानदानी एतबार से करवाया जाए तो फर्जंद अकील है। हजरत अकील अमीर अल मोमिनीन के भाई हैं। जनाब अकील पे एक पूरी गुफ्तगू, एक पूरी मजलिस जनाब अकील पे हो कि जनाब अकील किन किन फजाइल और किन किन कमालात का मंबा थे। लेकिन जनाब अकील के लिए मैं गुजरते गुजरते यहाँ एक ही जुमला कहना लगूंगा कि उनके तारुफ के लिए इतना ही काफी है कि वो दौरे जहलियत में भी अकील थे। क्या बात है जी, जियो किबला, बहुत खूब। उन्हें जमाना जहलियत में भी अकील कह के बुलाया जाता था। जहां लोगों के पास अक्ल शऊर नाम की कोई चीज नहीं थी, वो उस दौर में भी अकील थे। उनके बहुत से फजाइल हैं, इंतहाई बहादुर थे। उनके लिए तारीख के मौरख ने तारीखी एतबार से ये बातें बहुत अहम है कि तारीखी एतबार से उनकी शख्सियत को मसक करने की कोशिश की गई है। जनाब अकील को माज़अल्लाह बाज़ मुअर्रिखीन ने जो बनी उमैया की तनख्वाहों पे तवारीख लिखते थे, उन्होंने लिखा कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो हाकिम शाम की तरफ ज्यादा रग़बत रखते थे। ये तमाम वो तारीखी गलतियां हैं जिनका पोस्टमार्टम होना बड़ा जरूरी है कि जनाब अकील की मोहब्बत और वाबस्तगी अमीर अल मोमिनीन के साथ थी। यही वजह है कि जनाब अकील ने मौला अमीर अल मोमिनीन को जो खत लिखे, वो खतूत आज भी तारीख का हिस्सा हैं, जिस पे जनाब अकील ने वाज़े तौर पे अपने भाई अली इब्न अबी तालिब से इस बात का इजहार किया कि अगर मुझे खबर हुई है कि अरब के लोगों ने आपको फिर वैसे ही तनहा कर दिया है जैसे रसूल को तनहा किया था, तो मैं और मेरी औलाद आपके लिए हाजिर है। और मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने जनाब अकील का जो खत का जवाब दिया था, वो खत आज भी तारीख का हिस्सा है कि उनमें जनाब अकील की जो तारीफ और जो वसफ बयान किए हैं वो काबिल दीद है। क्योंकि मौजूए गुफ्तगू जनाब अकील नहीं, मौजूए गुफ्तगू है मुस्लिम बिन अकील। जनाब अकील इनके वालिद हैं। मौला सरकार हजरत अबू तालिब के जितने भी बेटे थे, 4 बेटे थे। तारीखी एतबार से 4 बेटे कहा जाता है, लेकिन आज की इस नशिस्त में और आज के इस सेशन में और आज की इस मजलिस में मैं आपके सामने एक बड़ा अजीब और एक अहम नुक्ता बयान करूंगा। तारीख कहती है कि जनाब अबू तालिब के 4 बेटे थे, लेकिन मैं जब भी गुफ्तगू करूं तो मैं कहूंगा कि हजरत अबू तालिब के 5 बेटे थे। आप पूछेंगे 5 कैसे थे, तो आइए जब तारीख से पूछते हैं तो तारीख कहती है कि हजरत इमरान के बड़े बेटे जो थे उनका नाम तालिब था, जिनकी वजह से उनकी कुनियत मशहूर हुई अबू तालिब। उनसे छोटे 10 साल छोटे हजरत तालिब से पूरे 10 साल छोटे हजरत जाफर तैयार थे। हजरत जाफर तैयार से पूरे 10 साल छोटे हजरत अकील इब्न अबी तालिब थे। हजरत अकील से पूरे 10 साल छोटे हजरत अली इब्न अबी तालिब से, और अली से पूरे 10 साल छोटा इस्लाम था। क्या बात, जनाब क्या बात। तालिब के 10 साल बाद हजरत जाफर दुनिया में आए। जनाब जाफर के पूरे 10 साल बाद जनाब अकील दुनिया में आए। मौला अकील के पूरे 10 साल बाद मौला अमीर अल मोमिनीन दुनिया में आए, और मौला अमीर अल मोमिनीन के पूरे 10 साल बाद इस्लाम ने आंख खोली थी। तो हजरत अबू तालिब की गोद में 4 नहीं 5 बेटे पल रहे थे। इस्लाम अबू तालिब के बेटे का नाम। और आज उम्मत इस बात पे फख्र महसूस करती है, और आज भी और कल भी टेलीविजन पे ये खबर नशर हो रही थी कि इतने लाख फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं। लोग आज इस्लाम के बेटे होने पे फख्र महसूस करते हैं। अगर कोई कहे कि आपने इस्लाम को अबू तालिब का बेटा कैसे कह दिया, अगर तुम जैसे जाहिल इस्लाम के बेटे हो सकते हैं, तो फिर इस्लाम तो पला ही अबू तालिब की गोद में था। इस्लाम को तो पाला ही हजरत अबू तालिब ने था। खैर, जनाब अकील इल्मुल अंसाब के माहिर थे, नसब बहुत जानते थे। तारीखी एतबार से अगर मैंने पहले कहा कि इन पे गुफ्तगू की जाए तो 60 मिनट कम अज कम दरकार है हजरत अकील पे बोलने के लिए, कि हजरत अकील की महफल में अरब के लोग बैठने से, अरब के अक्सर लोग बैठने से इसलिए कतराते थे कि अकील महफल में उसका शजरा बयान कर दिया करते थे। हजरत अकील महफल में बता दिया करते थे कि तेरा असल बाप कौन है। हजरत अकील महफिल में बता दिया करते थे। बहुत से वाकयात हैं जिसमें 3 शख्स ने अशखास ने हजरत अकील को एक दरबार में घेरे में लिया हुआ था, तो हजरत अकील ने उन तीनों का तारुफ दरबार में लोगों की मौजूदगी में उनकी माओ के नाम से करवाया था।
اے سالن فروش کے بیٹے، اے عرب کی اس کنیز کے بیٹے جس کے خریداروں کی تعداد بڑی زیادہ تھی، تو لوگ کتراتے تھے حضرت عقیل کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ تو جب بھائی عقیل جیسا ہو جو لوگوں کے نسب جانتا ہو، تو اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور میدان میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں تمہارے حسب سے بھی واقف ہوں، میں تمہارے نسب سے بھی واقف ہوں۔ لیکن دونوں بھائیوں کے کمالات میں ایک فرق آ گیا، جو کام عقیل خود کرتے تھے وہ کام علی کی تلوار کیا کرتی تھی۔ جناب عقیل بھی شجرے جانتے تھے اور ذوالفقار علی بھی شجرے جانتی تھی۔ عقیل کی زبان شجرے دے کے چلتی تھی اور علی کی تلوار شجرے دے کے چلتی تھی۔ نعرہ جناب عقیل حیدری، یا یا علی۔ جناب عقیل نے قبطیہ خاندان میں ایک شادی کی۔ قبطیہ ایک نسل ہے جس میں رسالت مآب کی ایک زوجہ ماریہ قبطیہ جو مشہور ہے، جن سے رسول کے ایک فرزند بھی دنیا میں آئے تھے حضرت ابراہیم، اسی قبطیہ خاندان میں حضرت عقیل کی شادی ہوئی، اور حضرت عقیل کی اسی زوجہ سے حضرت مسلم جو ہیں وہ دنیا میں آئے۔ حضرت مسلم کی کل جو سوانح حیات ہے، کل زندگی ہے، اس کے بارے میں مورخین میں 3 طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 28 سال زاری عمر تھی، بعض کہتے ہیں کہ 34 سال کی عمر ہے مکمل ان کی، اور بعض مورخین نے 38 سال کی عمر جو ہے وہ جناب مسلم کی لکھی ہے۔ مدینہ منورہ میں جناب مسلم دنیا میں آئے۔ تاریخ آمد جو ہے وہ تاریخ ظہور جو ہے، دنیا میں آنے کی تاریخ، اس میں مورخین کی اکثریت جو ہے وہ خاموش ہے، لیکن مدینہ منورہ میں حضرت مسلم نے آنکھ کھولی، اور آل ابو طالب کا گھر جو تھا وہ حضرت عقیل کا مسکن تھا، حضرت مسلم کا مسکن تھا۔ جناب عقیل نے جناب مسلم کو اپنی اس گود میں پالا جس گود میں وہ علی ابن ابی طالب کو بھی اٹھایا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ کو اکثر تاریخ میں اور اکثر مجالس میں ایک لفظ سننے کو ملتا ہے کہ امیر المومنین نے جب جناب حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس کی والدہ جناب فاطمہ کلابیہ جنہیں ام البنین کہا جاتا ہے، جب ان کے ہاں رشتہ کی خواہش کا اظہار کیا تو جناب عقیل سے کہا تھا۔ تو جناب عقیل سے کہنے کی وجوہات میں سے مورخین نے لکھا کہ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ علم الانساب جانتے تھے، لیکن اس کے اندر ایک مخفی راز دوسرا بھی تھا کہ جب جناب علی بن ابی طالب نے کہا کہ مجھے ایک بہادر خاندان سے رشتہ چاہیے، تو جناب عقیل کا دوسرا سوال یہ تھا کہ علی بن ابی طالب ہمیشہ اس وصف کی تلاش کی جاتی ہے جو پہلے موجود نہ ہو۔ جب اس گھر میں آپ جیسا بہادر موجود ہے، ہاشمیوں کو بہادری کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو کسی ایسے خاندان کی ضرورت کیوں ہے کہ جہاں سے کوئی بہادر خاندان ہو؟ تو اب جب وضاحت طلب کی تو اب مولا امیر المومنین نے راز سے پردہ اٹھایا، فرمایا اے میرے بھائی عقیل، میں اس لیے بہادر خاندان چاہتا ہوں کہ اللہ اس عورت سے مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ فرمایا آپ کے پاس حسن جیسا بیٹا، آپ کے پاس حسین جیسا بیٹا، فرمایا اللہ مجھے اس کے وطن سے ایک بیٹا دے گا جو میرے بیٹے کی کمر کا زور بنے گا، جو میرے بیٹے کی کمر کی طاقت بنے گا۔ فرمایا کس لیے چاہیے آپ کے بیٹے کو کمر کی طاقت؟ فرمایا دین الہی کو مضبوط کرنے کے لیے حسین قیام کریں گے، اور حسین کو اپنے قیام کے لیے ایک بیٹے کی ضرورت ہے، ایک بھائی کی ضرورت ہے جو حسین کے ساتھ ایسے چلے جیسے داؤد چلا کرتے تھے، جیسے میں مصطفیٰ کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ بس یہ بات جناب عقیل کے کان میں ڈالنا اس رشتے کی خواہش کے اظہار کرنے کا ایک راز تھا۔ جناب عقیل کو اسی دن پتا چل گیا تھا کہ علی کے ایک بیٹے کو دین مضبوط کرنے کے لیے ایک طاقتور مددگار چاہیے۔ بس عباس کی تلاش شروع ہو رہی تھی اور گھر میں مسلم کی پرورش ہو رہی تھی۔ جناب عقیل نے جناب مسلم کو اسی خواب کی تعبیر میں پرورش کرنی شروع کر دی، اور جناب عقیل بچپن سے جناب مسلم کو تلوار چلانے کا ہنر سکھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے مسلم، مجھے تیری تربیت کی غرض یہ ہے کہ میں نے علی سے سنا تھا کہ دین الہی کی مضبوطی کے لیے ایک طاقتور مددگار کی ضرورت ہے، تو جب حسین کو ایسے مددگار کی ضرورت ہو تو میری خواہش ہے کہ تیرا بھی نام انہی ناصرین میں سے لکھا جائے۔ کیا کہنے جناب عقیل کے کہ جنہوں نے کربلا سے پہلے حسین کے ناصر تیار کرنے شروع کر دیے تھے۔ جناب مسلم کا کردار جو ہے
وہ تاریخ میں جب جناب مسلم نے اپنے شباب میں قدم رکھا تو اب ہمیں جناب مسلم جو ہیں وہ پہلی دفعہ تاریخ میں جنگ صفین میں نظر آتے ہیں۔ جنگ صفین سے پہلے جناب مسلم کا جو کردار تھا، جناب مسلم بنی ہاشم کے تمام کرداروں کے ساتھ جہاں جہاں جیسے جیسے بنی ہاشم نے احتجاج کیا، بعد رسول خلافت کے چھننے کا احتجاج ہوا، دروازہ سیدہ کا احتجاج ہوا، اس میں جناب مسلم ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ لیکن جناب مسلم کی ایک واضح جو ایک انفرادیت ہمیں نظر آئی، وہ انفرادیت ہمیں نظر آتی ہے جب جناب مسلم کو جنگ صفین میں مولا امیر المومنین نے ایک دستہ دے کے، ایک دستے کا سپہ سالار بنا کے، صرف یہ نہیں کہ ایک سپاہی کی غرض سے جناب مسلم بن عقیل کو ایک دستے کا سپہ سالار بنا کے جنگ صفین میں بھیجا گیا، اور جنگ صفین میں جب اتارا گیا تو جناب مسلم بن عقیل کا وہاں اترنے کا رجز جو ہے وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل نے میدان جنگ میں جا کے جب اپنا تعارف کروایا تو فرمایا کہ میں عرب کے اس بہادر خاندان کا فرد ہوں کہ میری رگوں میں عقیل کا لہو ہے اور میری کمر پہ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ ہے، میں علی کی دعا کے سائے میں اور عقیل کی گود میں پلا ہوا ہوں۔ جناب مسلم کا تعارف اتنا غضبناک تھا، تعارف اتنا جلال والا تھا کہ صفین میں شام کی فوج نے پہلی بار ایک ایسا مرد مجاہد دیکھا تھا جو دو ہاشمیوں کے ساتھ اپنا تعارف کروا رہا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ابو طالب کا پوتا بھی ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بھتیجا ہوں اور میں عقیل کا بیٹا ہوں۔ جناب مسلم نے ایک انتہائی بہترین حملہ کیا اور فوج اشقیہ کو، فوج شام کو شام تک چھوڑ کے آنے میں جناب مسلم کا ہمیں کردار نظر آیا۔ جناب مسلم کے اس کردار کے بعد پھر جناب مسلم کا ہمیں کردار تاریخ میں نظر آتا ہے کہ مولا امیر المومنین کی جتنی بھی جنگیں تھیں ان میں مولا امیر المومنین کے جو بیٹوں کا دستہ ہوتا تھا جناب مسلم بن عقیل اس دستے میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد مولا حضرت امام حسن علیہ السلام کے دور میں امام حسن کے ساتھ ایک مکمل مشیر بن کے جنہوں نے زندگی گزاری وہ جناب مسلم تھے۔ جناب مسلم کے ساتھ مولا امام حسن اپنے ہر کام میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ جب تاریخ نے ہمیں مشیر حسن علیہ السلام کے طور پہ جناب مسلم کو دکھایا تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جناب مسلم بن عقیل کا انتخاب امام حسین کے لیے کرنا یہ بالکل نیا موضوع نہیں تھا، یہ ایک نئی حقیقت نہیں تھی۔ اس سے پہلے حسین ابن علی جناب مسلم کو مشیر کے طور پہ امام حسن کے ساتھ دیکھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ جناب مسلم ان تمام معاملات کو کتنی گہرائی سے جانتے ہیں، ان تمام معاملات پہ کتنی گہری نظر رکھتے ہیں۔ پھر جناب مسلم کو کوفہ بھیجنے میں جو راز تھا ان رازوں میں ایک راز یہ تھا کہ مولا امیر المومنین کے بعد جو کوفہ کی بے وفائی ہوئی تھی اس کوفہ کی بے وفائی کو جناب مسلم بڑے قریب سے دیکھتے تھے۔ جناب مسلم ان تمام قبائل سے واقف تھے جن قبیلوں نے مولا امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں جانے سے انکار کیا تھا، جنہوں نے مولا امیر المومنین سے بے وفائی کی تھی، ان تمام کرداروں سے جناب مسلم اچھی طرح واقف تھے، ان خاندانوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے کوفہ والوں کی رگ رگ سے واقف ہونے کی وجہ سے کائنات سے واقفیت رکھنے والے حسین ابن علی نے ان کو وہاں اتارا تھا۔ اب یہاں پر مولا جناب سرکار حضرت مسلم بن عقیل کا جو عقد ہے وہ سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس کی ہمشیرہ جناب رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہا اس شہزادی کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ مولا امیر المومنین نے یہ حکمن فرمایا تھا کہ میری بیٹیاں عقیل کے بیٹوں کے لیے ہیں، لہذا جناب رقیہ جو ہیں ان کا عقد جو ہے وہ جناب مسلم کے ساتھ ہوا، اور شہزادی کبریٰ فاتح شام جو ہیں ان کا عقد جو ہے وہ عبداللہ ابن جعفر طیار کے ہاں ہوا، اور جو شہزادی ہے جنہیں ام کلثوم کہا جاتا ہے ان کا عقد جو ہے وہ اون بن عبداللہ اون بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ لہذا مولا امیر المومنین کی جتنی بھی شہزادیاں تھیں وہ مولا امیر المومنین کے جتنے بھی جو بھائی تھے انہی کے بیٹوں کے ساتھ ان کے عقد ہوئے۔ شہزادے کا عقد جو ہے وہ شہزادی رقیہ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ ہوا، اس میں سے اللہ نے ان کو جو اولاد دی ان میں سے تاریخ میں اختلافات ہیں، 4 فرزندان، 6 فرزندان اور 1 بیٹی یا 2 بیٹیاں، اس کا تاریخ میں کثرت کے ساتھ ذکر ملتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے
کہ जनाब मुस्लिम के जितने भी बेटे थे वो काम दीन के आए हैं, उनकी जिंदगियां वक़्फ़ दीन के लिए हुई थी, उनकी शहादत नुसरत इमाम हुसैन इब्ने अली के लिए हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को मदीना छोड़ चुके थे, आप मक्का पहुंच चुके थे, आप शबानुल मुअज्जम का इब्तिदा था जब आप मक्का पहुंच चुके थे। आपने मक्का में आके दो तरह की रवायात कि आपने जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के घर या जनाब खदीजा जो नानी है सरकार हजरत करीम करबला की, उनके यहाँ तवक्कुफ किया, उनके यहाँ क्याम किया, और शबान में लोगों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, लोगों के वफद आना शुरू हो गए, वफूद आते थे और मक्का में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते थे। इधर कूफा में ये हालत बन चुकी थी कि कूफा का गवर्नर नुमान बिन बशीर बन चुका था। नुमान बिन बशीर जो था, उसकी जो बेटी थी वो जनाब मुख्तार सकफी की बीवी थी। नुमान बिन बशीर जो है वो भेजा हुआ यजीद का गवर्नर था, लेकिन उसका दिल इस कदर यजीद की तरफ माइल नहीं था, वो उस कदर यजीद के साथ रगबत नहीं रखता था। वो कूफा का गवर्नर बन चुका था। कूफा में हालात इस अंदाज से खराब हो चुके थे कि बाद शहादत अमीरुल मोमिनीन, जब आप अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी में जाके कूफा के हालात देखें तो एक बात आज की मजलिस में मैं जरूर उसको वाजे करूंगा कि जब भी कूफा का नाम आता है तो लफ्ज बेवफाई जो है वो शामिल कर दिया जाता है कि कूफा वालों ने वफा नहीं की थी। कूफा वालों ने बहुत वफा की है आइमा के साथ, मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ। जब जंग जमल और जंग सफीन में लश्कर गए तो उनमें बहुत ज्यादा तादाद जो थी वो कूफा के रहने वालों की थी। कूफा कोई कदीम शहर नहीं था, कूफा कोई बहुत पुराना शहर नहीं था, कूफा कोई नबियों के जमाने का शहर नहीं था, कूफा एक कदीम आबादी नहीं थी, एक जदीद शहर था जिसे बहुत बाद में मार्ज वजूद में आया था। इसके नाम के दो तरह की गर्ज मिलती है कि रुक जाने को भी कुफ कहते हैं कि जहां तवक्कुफ किया जाता था, जहां रुक जाते थे, उसकी वजह से इसका नाम कूफा पड़ा। तो ये एक फौजी छावनी थी, यहाँ पर मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ किस्म के तमद्दुन के लोग रहते थे, एक मुख्तलिफ किस्म का कल्चर था, कोई किसी कबीले के लोग थे, कोई किसी कबीले के लोग थे, कोई किसी कबीले के लोग थे। इसको कूफा शहर आबाद करने की मरकजी वजह यह थी कि इसे शतुल अरब भी कहा जाता था। यहां से आके मुख्तलिफ मुल्कों के रस्ते जाते थे, उन तमाम रस्तों को जो जगह कंट्रोल करती थी वो कूफा थी। कूफा इसलिए एक मरकजी जगह थी। उधर शाम में उमैया अपनी सल्तनत कायम कर चुके थे, इधर मदीना में बाद रसूल जो है वो रसूल के बाद खिलाफत का दौर शुरू हो चुका था। इधर शाम में उमवी साजिशें अपना सर उठा रही थी, लेकिन शाम वाले चाहते थे कि हम मदीना तक अपना तसल्लुत कायम कर लें। इधर शाम था, इधर मदीना था, दरमियान में कूफा एक ऐसी जगह थी जहां पे आके पूरी दुनिया अरब में जितने इस्लामी ममालिक थे उनको भी कंट्रोल किया जा सकता था। लिहाजा शाम में मुआविया बिन अबू सुफियान ये चाहता था कि वो शाम से निकल के कूफा पहुंचे और कूफा में आके जितने बाकी इस्लामी ममालिक हैं उनको भी अपने तसल्लुत में ले ले, अपने कब्जे में ले ले। फिर मदीना सिर्फ अकेला रह जाएगा और मरकजियत हमारे पास आ जाएगी, अकलियत मदीना के पास चली जाएगी। यही वजह है कि तीसरी खिलाफत के दौर में शाम को इतना मजबूत कर दिया गया था कि उसके जितने भी रिश्तेदार अहबाब थे उन तमाम को मरकजी गवर्नरियां दे दी गई थी, मरकजी मुल्क उनके हवाले कर दिए गए थे, जिसकी वजह से मौला अमीरुल मोमिनीन को खौफ था कि तीसरी खिलाफत ने उमवियों को इतना ताकतवर कर दिया है कि अब ये कूफा में आके अपना मरकज बना के मदीना तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने इसी वजह से मदीना से मरकजियत को खत्म करके अपना मरकज कूफा को बना लिया था। कूफा में आके मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने नासरीन को तैयार किया, साथ देने वालों को तैयार किया। जंग जमल आ गई, बहुत बड़ी तादाद कूफा से मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ गई। जंग सफीन आई, बहुत बड़ी तादाद कूफा से मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ गई। लेकिन यहाँ पर जब मैं तारीखी एतबार से एक तारीख का तालिब इल्म होने की हैसियत से पढ़ता हूँ तो यहाँ ये बात हमें सामने हकीकत जो नजर आती है कि अरब के जो लोग थे, लड़ना उनका मशगला था, लड़ना उनका पेशा था, लड़ना उनका बिजनेस था, वो लड़ाई ही से कमाते थे, वो माले गनीमत से ही अपने घर चलाते थे। लिहाजा जंग जमल में मौला अमीरुल मोमिनीन ने जब जंग खत्म हुई तो किसी से कहा कि कोई भी मुखालिफ लश्कर का माल अपने ऊपर हलाल न समझे, लिहाजा कोई भी माल जो है वो अपनी फौज में तकसीम नहीं होने दिया। जंग सफीन फिर अधूरी रह गई। तो जबल और सफीन में मुसलसल जंगों में कूफा के लोग जाते थे, लेकिन जब वापस आते थे तो खाली हाथ आते थे, इनके हाथ में कोई माल गनीमत नहीं होता था।
तो लिहाजा अब उनका जंगों से एतबार इसलिए उठ गया था कि हम अली के साथ जंग पे जाते तो हैं, लेकिन अली किसी का माल नहीं लूटने देते, अमीर अल मोमिनीन किसी पे हाथ नहीं डालने देते। उसमें एक अक्सरियत तादाद जो पेशे के एतबार से जंगें लड़ती थी, उनमें से तो अक्सरियत इसी बात पे मौला अली से खाइफ हो गई थी कि अली हमें माल गनीमत नहीं लूटने देते। फिर उसके बाद जो दूसरी एक तादाद बच गई थी, उन्हें शाम की खुफिया साजिशों ने अपना शिकार कर लिया था। शाम वालों के खुफिया जासूस कूफा में आके आबाद हो चुके थे। उन्हें मुख्तलिफ किस्म की शरअंगेजियों और फितनों से उनको अपनी लपेट में ले लिया था। एक तादाद कूफा वालों की माल गनीमत के लालच की वजह से जा चुकी थी, एक तादाद जो है वो शाम की साजिशों की नजर हो चुकी थी। अब मौला के पास मुखलसीन की तादाद बड़ी कम रह गई थी, लेकिन जो मुखलिस थे वो बड़े खास मुखलिस थे। आप ये ना समझे कि कूफा में सारे ही लोग मुखालिफ थे। कूफा मुखालिफत उमा नहीं था। कूफा में हानी बिन उर्वा था, कूफा में रशीद हजरी था, कूफा में आबस शाकरी था, कूफा में मुख्तार सकफी था। कूफा में बड़े जय्यद किरदार अभी मौजूद थे। बाद शहादत अमीर अल मोमिनीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम, लेकिन कूफा से सिर्फ मखसूस नासरीन थे जो साथ थे। जब खबर हुई कि माविया ने अपने बाद यजीद को तख्त पे बिठा दिया है, तो अब जो मखसूस मुखलिसीन थे, अब वो कूफा से निकलना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हम कूफा के मजाफात में जो लोग कूफा छोड़ के जा चुके हैं उनको दोबारा इकट्ठा करें और दोबारा लोगों को इकट्ठा करके यजीद के खिलाफ एक लश्कर का क्याम वजूद में लाए। यहां पर हमें तारीख में किरदार मिलता है सुलेमान बिन सुर्द खुजाई। ये इनकलाब पसंद आदमी बना। इसने बहुत से लोगों को जत्थे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके इसने चाहा कि हम यजीद के खिलाफ इनकलाब लेके आएंगे, हम यजीद को ललकारेंगे। लेकिन इसका अगर इसने यजीद के खिलाफ क्याम करने का सोचा था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए इसका ना जाना इसके किरदार को हिस्ट्री में मशकूक बनाता है कि अगर इसने सोच लिया था कि इसने यजीद की मुखालफत करनी है तो इसे हिमायत हुसैन में जाना चाहिए था। लेकिन हिमायत हुसैन में भी ना जाना, इसका न्यूट्रल हो जाना इस बात की दलील था कि इसने अपनी जाती वाबस्तगियों या सियासी वाबस्तगियों की पेश नजर ये फैसला किया होगा। अब यहां पर जनाब मुख्तार थे। मुख्तार भी चाहते थे कि कूफा के मदाफात से लोगों को इकट्ठा करें। मैं आज की इस गुफ्तगू को तारीखी एतबार से इसलिए अहम बनाना चाहता हूं कि ये वो वाकयात हैं जिनको मजालस में बयान नहीं किया जाता, ताकि जनाब मुस्लिम की जिंदगी पर जाने से पहले हमें पता चले कि जनाब मुस्लिम ने कितना बड़ा मार्का करबला होने से पहले सर कर लिया था। अब कूफा जो था, कूफे को शाम वालों ने आबाद कर दिया था अपने भेजे हुए सिपाहियों के साथ। अब कूफा में वो लोग आके आबाद हो चुके थे जिनके दिल जो थे वो उम्वियों की तरफ माइल हो चुके थे, या माल दुनिया के लालच में वो अहले बैत से दूर हो चुके थे। गर्ज दुनिया, माल दुनिया का लालच, ख्वाहिश दुनिया, इन तमाम चीजों का मरकज बन चुका था कूफा। जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में बैठे हैं, तो अब यहां पर तारीख कहती है कि सुलेमान बिन सुर्द खुजाई को जब पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो मक्का पहुंच गए हैं, तो उसने एक वफद भेजा इमाम हुसैन से मुलाकात के लिए, जिन्होंने मौला इमाम हुसैन को कूफा आने का कहा और कूफा आने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहले खतूत लिखे। ये पहले खत लेके एक वफद जो है वो मक्का पहुंचता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं, इमाम जो है वो दिलों के हाल जानता है। मौला को खबर थी कि कूफा में नासरीन की कमी है, लेकिन मौला ने पहले ही खतूत में कूफा की तरफ किसी को भेजने का इरादा नहीं किया। जब मौला की तरफ से कोई जवाब ना आया तो फिर दूसरी तरफ फिर खतूत भेजे गए। अब तारीख ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो मैंने हिस्ट्री में तादाद पढ़ी है वो 40,000 खतूत, 40,000 खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा से गए। और जो एक तादाद ज्यादा मुस्तनद है वो 18,000 है कि 18,000 लोग जो है उन्होंने खत जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम लिख दिए थे। 18,000 की तादाद भी कम नहीं है, 40,000 की तादाद भी कम नहीं है। तो हजारों की तादाद में, यहाँ सैकड़ों की बात नहीं हो रही, हजारों की तादाद में खतूत जो है वो इमाम हुसैन इब्ने अली को मक्का में मिल रहे थे। अब यजीद ये चाहता था, यजीद को खबर हो गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में बैठे हुए हैं और वो कूफा आने का इरादा करते हैं। उसने कूफा में अपने ही लोगों से ज्यादा खतूत इसलिए लिखवाए कि वो चाहता था कि हुसैन इब्ने अली को कूफा बुलवाऊं और कूफा बुलवा के इन्हें कूफा में कत्ल करवा। कूफा से लातादाद खतूत, और उन खतूत का मतन एक था। उन खतूत को
जो लिखा जा रहा था उन खतूत का, आप जब एक ही उनकी मतन था, एक ही तहरीर थी, क्या फरजंद रसूल हम तन्हा हो गए हैं, हम समझते हैं कि अब तुम भी हमारे सरों पे राज कर रहे हैं, आपको आपकी माँ के हक का वास्ता, आपको आपके नाना का वास्ता, आप जल्द अज जल्द आ जाइए, बहुत जल्दी कीजिए, देर ना कीजिएगा, फौरन आ जाइएगा। वो तमाम खतूत थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मक्का में मिल रहे थे। अब यहां पर किताबों में एक किरदार जो शोहदा करबला में हमें नजर आता है, जनाब हजरत आबिस शाकरी। जनाब हजरत आबिस शाकरी जो है वो अपना खत लेके खुद इमाम हुसैन की बारगाह में जाते हैं और कूफा पहुंच के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा के मामला से आगाह करते हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब ये मुखलसीन पहुंचते हैं तो इन मुखलसीन के पहुंचने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये तय करते हैं कि अब मुझे कूफा में अपना सफीर भेजना है। तो जनाब मुस्लिम को इंतखाब करते हैं, जनाब मुस्लिम को अलहदा खेमे में लेके जाते हैं। एक बहुत देर तक की नशिस्त इमाम हुसैन और जनाब मुस्लिम के दरमियान होती है। जनाब मुस्लिम को अब वो नशिस्त क्या थी, तारीख उससे आ रही है, लेकिन यकीनन व यकीनन इमाम ने जनाब मुस्लिम को तमाम गायब से आगाह फरमाया, अल्लाह के उन राजों से आगाह फरमाया, जनाब मुस्लिम को कूफा के जमीनी हकायक से आगाह फरमाया और जनाब मुस्लिम अकील को कूफा की तरफ रवाना किया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, अगर हुसैन इब्न अली जानते थे कि कूफा के लोगों ने वफा नहीं करनी, तो जनाब मुस्लिम को भेजने में राज क्या था? अगर यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि इमाम का किरदार एक तो इलाही किरदार होता है, एक इमाम का किरदार दुनियावी किरदार भी होता है। इमाम को जमाने की चाल और ढाल को भी सामने रख के चलना है और इलाही निजाम को भी चलाना है। अगर यहाँ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई भी अपना सफीर कूफा की तरफ रवाना ना करते, तो आज इस वक्त उम्वी साजिश तारीख में इतनी गहरी हो चुकी होती कि देखें, हुसैन इब्न अली जब मक्का बैठे हुए थे तो कूफा से हजारों खतूत चले गए थे। तो हुसैन इब्न अली को चाहिए था कि वो कूफा आ जाते। कूफा तो उन्हें वेलकम कर रहा था, कूफा तो उन्हें अपने सरों में बिठाने के लिए तैयार था, कूफा के लोग तो उन पे मर मिटने के लिए तैयार थे। तो हुसैन इब्न अली ने यहां पर आके माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सियासी गलती कर ली। जिस तरह के इल्जामात मौला इमाम हसन पे लगते हैं, जिस तरह के इल्जामात मौला अमीरुल मोमिनीन पे लगते हैं कि अली ने सियासत नहीं की। अब यहां पर अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये फैसला कर लेते तो मौरख ये लिख देता, लेकिन इमाम हुसैन को फौरन किसी को भेजना था ताकि पता चले कि जो हाल मेरे सफीर का हुआ यही वो मेरा करना चाहते थे। लिहाजा जनाब मुस्लिम बिन अकील का इंतखाब किया। अगर मुस्लिम बिन अकील कूफा ना जाते तो यकीनन करबला में हुसैन बिन अली के साथ शहीद होते। होना तो शहीद ही था, करना तो इलाही निजाम को जिंदा था। तो लिहाजा इस क्याम को जनाब मुस्लिम के जिम्मे दिया कि आप कूफे को सर करें। जनाब मुस्लिम का एक ने फौरन दरियाफ्त किया मौला हुसैन इब्न अली से कि क्या आप मुझे खुद जुदा कर रहे हैं? फरमाया, बाखुदा मैं तुम्हें एक इतनी अहम जिम्मेदारी दे रहा हूं कि हम तमाम हाशमी मिलके एक महाज पे जाएंगे और तू अकेला एक महाज पे जाए, तेरा शुमार तनहा होगा, तू अकेले वो महाज को सर करेगा। जनाब मुस्लिम जो है वो कूफा की तरफ रवाना होते हैं। जब मक्का से निकलते हैं तो मदीना से गुजरते हैं। मदीना से गुजरते हुए जनाब मुस्लिम रोजा रसूल पे जाते हैं, रोजा रसूल की जियारत करते हैं। रोजा रसूल की जियारत करते हुए जनाब मुस्लिम, यहाँ तारीख कहती है अपने 4 साथियों और 2 गुलामों के हमरा, और बात कहती है सिर्फ 2 गुलामों के हमरा। जनाब मुस्लिम बिन अकील जो है वो कूफा की तरफ आज़म सफर हो जाते हैं। अब जब कूफा पहुंचते हैं तो जनाब मुस्लिम बिन अकील पहला ठहराव, पहला पड़ाव जनाब मुख्तार के घर करते हैं। जनाब मुख्तार अबू उबैदा सकफी के बेटे हैं। जनाब मुख्तार कूफा की एक मरकजी शख्सियत है। जनाब मुख्तार के चचा जो हैं वो मदाइन के गवर्नर हैं। एक सियासी बैकग्राउंड भी है, एक कूफे के मरकजी खानदान होने की वजह से भी जनाब मुख्तार को एक मरकजी हैसियत कूफा में दी जाती है। जनाब मुस्लिम जो है जनाब अमीर मुख्तार के घर का इंतखाब इसलिए करते हैं कि जनाब मुस्लिम के लिए महफूज तरीन वो पनाहगाह इसलिए है कि जनाब मुख्तार मौला अमीर अल मोमिनीन के, मेरी पूरी 10 मजालस है जनाब मुख्तार पे, और जनाब मुख्तार के किरदार को बड़ा मुफस्सल अंदाज से मैंने पढ़ा है। जनाब मुख्तार मौला अमीर अल मोमिनीन की दुआ थे, जनाब मुख्तार को मौला अमीर अल मोमिनीन की वसीयतें भी थी। लिहाजा जनाब मुख्तार के बाजुओं पे बड़ा यकीन था खानदान रसूल को। और दूसरी एक
सियासी वजह कि नुमान बिन बशीर जो उस वक्त का गवर्नर था उसकी बहन या बेटी जनाब मुख्तार की जौजा थी, तो लिहाजा ये सियासी तौर पे भी एक बड़ा अच्छा फैसला था कि उस घर में ठहराव किया गया। जनाब मुख्तार के घर में क्याम होता है, जनाब मुख्तार के घर में क्याम होने के बाद जनाब मुख्तार के घर में लोगों का तांता बन जाता है। एक इतनी तादाद में लोग कूफे के, जब खबर पहुंचती है कि सफीर हुसैन इब्न अली कूफा पहुंच चुके हैं, तो कूफा में शोर मच जाता है। अब कूफा में ये सारा कुछ इसलिए हो रहा था कि नुमान बिन बशीर जो था वो सख्त गवर्नर नहीं था। उसकी वजह मैंने बताई है कि मोहब्बत अहले बैत वजह ना हो, मैं उस पर कतन वकालत नहीं करूंगा, क्योंकि तारीख इंतहाई एक बारीक धागा है जिस पे चलना पड़ता है कि आप तारीख में एक एक किरदार को हिला हिला के देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बुग़्ज़ अहले बैत की रमक हो और इसे हम फजीलत में पढ़ दें। अब यहां पर अगर इसका किरदार जो है वो मोहब्बत अहले बैत का नहीं है, लेकिन दुश्मनी यजीद की वजह से ये इतना सख्त किस्म का गवर्नर नहीं था और यजीदी अहकामात को इतनी सख्ती से नाफज नहीं करता था। लिहाजा गवर्नर सख्त ना होने की वजह से कूफा वालों के लिए आसानी थी। कूफा के लोगों ने जनाब मुख्तार के घर में जाना शुरू कर दिया। जनाब मुख्तार के घर में जाके जनाब मुस्लिम के हाथ में बैयत करनी शुरू कर दी। ले जी, तारीख ये कहती है कि पहली ही 3 रातों में 40 से 60 हजार अफराद जो है वो पहुंच जाते हैं और पहुंच के जनाब मुस्लिम के हाथ में बैयत कर लेते हैं। जब जनाब मुस्लिम के हाथ में ये बैत हो रही है तो यकीनन यजीद के लोग भी वहां पर मौजूद थे। वो उस मलाउन को इतला देते हैं कि जी कूफा तो हाथ से निकल गया, कूफा वालों ने तो चुन लिया हुसैन इब्न अली को, कूफा वालों ने तो हुसैन इब्न अली के सफीर के हाथों पे पूरे कूफे ने बैत कर लिए। जब उस तक ये खबर पहुंचती है तो यजीद इसको अपनी शिकस्त मानता है कि ये मेरी बहुत बड़ी शिकस्त है कि अगर कूफा मेरे हाथ से निकले, क्योंकि कूफा को पाने के लिए इसके बाप ने भी बड़ी मेहनत की थी, उन्होंने जंगें लड़ी हुई थी कूफा को छीनने के लिए। तो उसने कहा कि कूफा मेरे हाथ से निकल गया तो फिर शाम तो मेरे हाथ से गया ही गया। लिहाजा वो पूरी रात न सोया और अपने बाप के वफादार तरीन मशीर सर जॉन ईसाई, ये एक ईसाई था जिसका यजीद के बाप के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक था और यजीद का बाप भी उससे बड़े मशवरे लिया करता था। सर जॉन ईसाई को उसने, रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी, इसने उसे बुलाया और बुला के इसे कहा कि मेरे ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ गिर गया है कि हुसैन का सफीर कूफा पहुंच चुका है और कूफा उसके हाथ में बैत कर चुका है, तो इसमें मुझे क्या मशवरा देगा। अब यहां पर तारीख कहती है कि सर जॉन ईसाई उसे ये कहता है कि मशवरा मैं दूंगा लेकिन तू कबूल नहीं कर। इसने कहा क्यों नहीं, मेरा बाप तेरे मशवरे मानता तो मैं कबूल क्यों नहीं करूंगा। उसने कहा अगर तू कबूल करने की यकीन दहानी करवाए तो फिर मैं तुझे मशवरा देता। इसने कहा मैं बिल्कुल यकीन दहानी करवाता हूं तो मुझे मशवरा। उसने कहा मशवरा नहीं दूंगा, तुझे एक तहरीर दिखाऊंगा। ये अंदर जाता है और अंदर जाके एक तहरीर लेके आता है। वो तहरीर थी इसके बाप की, यजीद के नाम, जो वो सर जॉन ईसाई को देके गया। उसमें लिखा था कि जब तुम देखे कि तेरी हुकूमत कमजोर हो चुकी है तो फौरन इब्ने जियाद को अपने साथ खड़ा कर लेना। अब यहां पर मुझसे सवाल कीजिए कि आखिर ये वसीयत क्यों करनी पड़ी। वसीयत इसलिए करनी पड़ी थी कि जो उबैदुल्ला इब्ने जियाद था, ये जियाद का बेटा था। ये जो जियाद था, जब इसकी ये पूरा खानदान, ये नस्ल मलाउन है, खुदा इन पे लानत करे, लातादाद लानत हो इन पे। अब तारीखी एतबार से मैं इस मजलिस को अहम इसलिए बनाना चाहता हूं कि इसमें तारीख के बहुत से अहम गोशे जो शायद मेरे सामीन और नाजरीन को पहली बार देखने और सुनने को मिले, मैं इस मजलिस में वो रिकॉर्ड करवा रहा हूं। इब्ने जियाद जो है वो जियाद का बेटा, असल इसका नाम उबैदुल्ला था, इसके बाप का नाम जियाद था। जियाद जो है जब ये दुनिया में आया तो जियाद के बाप का किसी को नहीं पता था। ये अरब का वो बच्चा था जो अपनी मां के नाम से मशहूर था, इब्ने सुमैया के नाम से मशहूर था। इसके लोग इसे मां के नाम से जानते थे, बाप के नाम से नहीं। ये नहीं पता था कि ये किसका बेटा। अब ये गिलाजत से बड़ी हुई रवायात हैं जिनको मजलिस का तकद्दुस जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस पे खुल के बात की जाए। लेकिन जब ये खबर जो है वो एक जिरगे में लाई जाती है तो फिर उसकी मां जो है वो एक फूलों का हार लाके हाकिम शाम के बाप अबू सुफियान के गले में डाल देती है और कहती है कि ये तेरा बेटा। अबू सुफियान ने सारी जिंदगी इसको बेटा नहीं माना, लेकिन आखिर एक मजबूरी बनी। मजबूरी बनने की वजह से हाकिम शाम को इसे अपना भाई मानना पड़ा, अमर बिन आस के
मशवरे पे जब जंगों के लिए मौला अली के मुकाबले पे जाना था तो मौला अमीरुल मोमिनीन का मुकाबला करने के लिए, जियाद को अपने साथ खड़ा करने के लिए इसने दरबार में एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया कि जियाद जो है ये मेरा भाई है, जिसका और मेरा बाप एक है लेकिन मां एक नहीं है। इस बात को जब हाकिम शाम यजीद के बाप ने दरबार में बयान किया था तो यजीद की मां ने इस बात पे इंतहाई नाराजगी का इजहार किया था और एहतजाज किया था। मां की वजह से यजीद जियाद के बेटे को कभी भी अपना भाई तस्लीम नहीं करता था। लेकिन जब सर जॉन ईसाई ने वो तहरीर दिखाई कि तुम्हारे बाप ने कहा था कि जब मुश्किल पड़ेगी तो तुम्हें इसे अपने साथ खड़ा करना पड़ेगा, अब उधर या तो कूफा अपने हाथ से चला जाए या उबैदुल्लाह को कबूल किया जाए। मुश्किल फैसला था लेकिन उसने ये मुश्किल फैसला फौरन किया क्योंकि गैरत का इस खानदान के साथ और इस घर के साथ का ताल्लुक नहीं था। दुश्मनी अहले बैत में तो ये कुछ भी कर सकते थे, लिहाजा इसने फौरन पूछा। इब्न जियाद उस वक्त बसरे का गवर्नर, इसने फौरन एक खत लिखा और खत में इब्न जियाद को कहा कि बसरा भी तेरा और कूफा भी तेरा, फौरी तौर पे कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर को मजूल करो और कूफा में जितना खून बहाओ तुमसे कोई नहीं पूछेगा, जितना बैतुल माल खर्च करो तुमसे कोई नहीं पूछेगा, मुझे कूफा हुसैन के सफीर से आजाद चाहिए और हर कीमत में चाहिए। जब ये सिपाही बसरा पहुंचता है तो उबैदुल्लाह इब्न जियाद मलऊन के लिए उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती कि बसरा और कूफा दो ही तो मरकजी शहर थे, ये दो ही तो मरकजियत थी और इराक की। उन्होंने कहा अगर इराक के ये दो बड़े शहर ही मुझे मिल जाए तो फिर पीछे इराक में बच क्या जाएगा। उसने कहा, उसने बड़ी खुशी की और खुशी करने के बाद उसने बसरा में अपनी एक तकरीर की और तकरीर करने के बाद अपने भाई उस्मान बिन जियाद को बसरे का निगरान गवर्नर बनाया और वहां से लश्कर लेके चल पड़ा। अब 30,000 का लश्कर लेके चला या 300 का लश्कर लेके चला, ये बसरा से रवाना हो चुका था। इधर से बसरा से रवाना हुआ, उधर खबर कूफा पहुंच गई कि नुमान बिन बशीर को मजूल कर दिया गया है और अन करीब कोई नया गवर्नर आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता कि वो नया गवर्नर कौन है। जब ये खबर कूफे की गलियों में फैल गई तो अब जनाब मुख्तार जो है उन्होंने जनाब मुस्लिम को ये कहा कि अब कूफा जो है वो ये ना हो कि हमारी कत्लगाह बन जाए, तो मुझे कूफा से निकल जाने वाले जो लोग थे, जो मौला अली के दौर में कूफा छोड़ के जा चुके थे, कि अब कूफा रहने के काबिल नहीं रहा, जो मजाफात में जाके साइडों पे जाके आबाद हो गए थे, इनको दोबारा इकट्ठा करूं और फिर दोबारा कूफे को वही कूफा बनाए जो कभी हुआ करता था। जनाब मुख्तार लश्कर की तादाद में निकल चुके थे और जाते हुए जनाब मुख्तार जनाब मुस्लिम को अमानतन कहां छोड़ के गए, हानी बिन उर्वा के घर, जिनकी जियारत आज भी कूफा में जनाब मुस्लिम बिन अकील के हरम के बिल्कुल सामने जनाब हानी की जियारत है और आज भी उसे अल्लाह की अमानत का अमीन कह के सलाम किया जाता है। आज की उनकी जियारत पे लोग अपनी दुआएं करते हैं और बारगाह इलाही का तकर्रुब और बारगाह मासूमीन का तकर्रुब हासिल। जनाब हानी बिन उर्वा कूफा की एक बुजुर्ग तरीन शख्सियत, रोब और दबदबा अल्लामान, इतना रोब और दबदबा था कि जब जनाब हानी बिन उर्वा अपने घर से निकलते थे तो किताबें कहती हैं कि इनके साथ 4,000 घोड़ों पे जिर्रा पहने हुए लोग और 3,000 पैदल लोग इनके साथ चलते, यानी कि 7,000 बॉडीगार्ड जो अपने साथ लेके चलता हो वो कितना बड़ा सरदार होगा। इनके मुहाफिजीन की तादाद 7,000, बहुत मरकजी हैसियत। कूफा में एक रोब, एक दबदबा, खानदानी एतबार से मशहूर, ज़ुहद के एतबार से मशहूर, तकवे के एतबार से मशहूर, मोहब्बत अहले बैत में इनकी मिसाल है। जनाब हानी बिन उर्वा जो है वो जनाब मुस्लिम को बिस्मिल्लाह कह के अपने घर में रखते हैं। जनाब मुस्लिम के घर, अब जनाब हानी का घर जो है वो मरकजियत इख्तियार कर चुका है। अब जनाब हानी के घर में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैत हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, मनसूबाबंदी हो रही है, ये तमाम चीजें चल रही है। उधर से मलऊन इब्न जियाद जो है वो कूफा के करीब पहुंच चुका है। कूफा के करीब पहुंच गए, ये कूफा से चंद मील के फासले पे था। ये अपने जासूस भेजता है कि कूफा के हालात पता करके वो आके बताते हैं कि हानी बिन उर्वा के घर में मुस्लिम है और लोगों ने मुस्लिम को बैत कर ली है और हानी इतना मजबूत है
کہ ہانی کے گھر کے باہر ہزاروں کی تعداد میں مسلح سپاہی جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں۔ اب یہ شام ہونے کا انتظار کرتا ہے، جو ہی شام ہوتی ہے تو یہ یمنی لباس پہنتا ہے اور سیاہ امامہ اپنے سر پہ رکھتا ہے۔ یہ یمنی لباس اور سیاہ امامہ ہاشمیوں کی ایک خاصیت، ہاشمی جو تھے، خاندان رسول جو تھا، وہ یہ لباس بے وطن کیا کرتے تھے۔ یہ یمنی لباس اور سیاہ امامہ اور ہاشمیوں کا اور ہمارے آئمہ کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا، یہ امامے کے دونوں تر جو ہے وہ لٹکاتے تھے، امامے کے دونوں طرف سے کپڑا چھوڑتے تھے، کپڑا چھوڑ کے اپنے گلے کے گرتے۔ اس نے اسی طریقے سے دونوں اطراف سے کپڑا جو ہے وہ گرایا، امامہ بھی ہاشمیوں کی طرح باندھا، لباس بھی ہاشمیوں کی طرح۔ اور یہ شام جب بالکل ختم ہوئی اور رات آ گئی تو یہ رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوا۔ اب جو ہی یہ رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حسین ابن علی آ گئے۔ اب اس کے جو جاسوس تھے انہوں نے اس سے پہلے جا کے کوفہ میں گلیوں میں شور کرنا شروع کر دیا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، حسین ابن علی آ رہے ہیں، حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ اب لوگ نکلے گھروں سے، چھتوں پہ لوگ، درختوں پہ لوگ، خبر بھی تھی کہ حسین آ رہے ہیں، پتا بھی تھا کہ حسین کے سفیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ویسے ہی لباس میں اور چہرے پہ نقاب لیے ہوئے، سیاہ امامہ سر پہ اور وہ ہاشمیوں والا سارا لباس۔ تو لوگوں نے کوفہ کی گلیوں میں مرحبا حسین، اہلن و سہلن حسین، خوش آمدید حسین، حسین آپ پہ قربان، حسین آپ کا انتظار تھا، یہ سب کچھ ہو رہا۔ اب یہاں پر میں نے تمام مجلس تاریخ کے اعتبار سے پڑھی اور میں یہاں ایک جملہ روک کے خطابت کا دینے لگا ہوں۔ وہ خطابت کا جملہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس معرفت کی کمی ہو تو وہ ابن زیاد کو بھی امام سمجھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس محبت ہو اور آپ یہ سمجھے کہ محبت ہی محبت ہے، محبت کے ساتھ معرفت بڑی ضروری ہے۔ کوفہ والوں کے پاس محبت تھی، معرفت نہیں تھی۔ میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں اور یہ جملہ وزنی ترین جملہ ہے، اس جملے کو آپ کسی اور پیرائے میں دیکھیں گے تو آپ کو جملے کا لطف آئے گا۔ جب معرفت کی کمی ہو تو کئی ابن زیاد بھی امام بن جاتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، کمی تھی، ناقص معرفت تھی، ناقص معرفت کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے شیعوں کے پاس محبت ہے امام زمانہ کی، معرفت نہیں۔ کیا اس میں بات، جب ولی العصر ظہور فرما دیں گے تو ان سے پہلے کئی امام بن جائیں گے، ایسے ہی۔ اور ان سے پہلے بننے والے اماموں کو لوگ امام سمجھتے ہیں۔ جو ہی ابن زیاد پہنچتا ہے تو لوگوں کی صدائیں، امام آ گئے، امام آ گئے، امام آ گئے، امام آ گئے۔ کیا کہنا اس امام کے ظہور مانگنے کا کہ ظہور مانگتے رہے اور جب امام آئے تو پہچانا ہی نہیں۔ الاجل کہتے رہے، جب امام آئے تو دھوکہ، جب امام آنے والے ہوں تو کسی بھی بہروپیے کو امام سمجھ کے دھوکہ کھاتے، ناقص۔ لیکن جن کے پاس معرفت تھی، کمال، وہ معرفت والے ایسے لوگ تھے کہ وہ عارف اپنے گھروں کی مسلوں پہ بیٹھے رہے، ان کے غلاموں نے جا کے ان کے کانوں پہ کہا کہ باہر دکانوں پہ رش ہے، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں، حسین ابن علی آ گئے ہیں۔ عارفین نے اپنے سر سجدوں سے نہ اٹھائے، انہوں نے کہا تم تو حسین سے محبت کر رہے ہو تو اب حسین کے استقبال کے کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا با خدا حسین نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تم مسلح میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ حسین نہیں آئے، ہم بازار میں دیکھ کے آئے ہیں حسین آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر حسین آتے تو رات کی تاریکی میں نہ آتے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری! یہ محمد رسول اللہ کا نواسا ہے جس نے مکہ کے باہر جا کے قیام کر لیا تھا کہ ابھی مکہ سویا ہوا ہے، میں صبح مکے میں داخل۔ تو جس کا نانا مکے میں رات کو داخل نہیں ہوتا، اس کا نواسا کوفے میں رات کو داخل کیسے ہوتا؟ جن کے پاس معرفت تھی انہوں نے لوگوں سے پوچھا حسین ہے؟ حسین ہے۔ اکیلے ہیں؟ اکیلے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر حسین نہیں۔ کیوں حسین کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا حسین ہوتے تو پہلے بازار میں صدا دینے والا عباس ہوتا۔ کیا بات ہے۔ ایک عارفہ مستور سے جا کے کنیز نے کہا حسین آ گئے، وہ صحن میں آئی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور واپس کمرے میں جا کے سو گئی۔ کنیز نے کہا حسین کا استقبال نہیں کرے گی،
उसने कहा ना खुशबू बता रही है ना नूर बता रहा है, अगर हुसैन होता तो ना आसमान की ये सूरत होती ना हवाओं में ये बू होती। क्या बात है, जियो किबला, ना सुभान खुशबू अल्लाह। बदली ना आसमान की रंगत बदली और हुसैन आ गए। बस इब्न जियाद चेहरे पहचानता जा रहा था कि कौन कौन इंतजार कर रहा है, कौन कौन इंतजार कर रहा है। ये लोगों का बलबला देख रहा था, लोगों का जज्बा देख रहा था। दारुल अमारा के करीब जाके इसकी सवारी रुकी। नुमान बिन बशीर ने दारुल अमारा की छत से देखा और उसने भी समझा कि हुसैन है। उसने दारुल अमारा की छत पे कहा, है हुसैन इब्न अली, बाखुदा मैं आपके कत्ल का कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कूफा को छोड़ दें। कहना था या इब्न जियाद मलाउन ने अपने चेहरे से नकाब उतार के कहा कि तेरी इसी कमजोरी की वजह से तो मुझे गवर्नर बनाया। दारुल अमारा का दरवाजा खोल, मैं यजीद का भेजा हुआ नया गवर्नर। दारुल अमारा का दरवाजा खुला। जब इब्न जियाद दारुल अमारा में दाखिल हुआ तो कूफे की गलियां खाली हो गई, लोग डर गए, लोग सहम गए। पता चल गया कि ये हुसैन इब्न अली नहीं, ये तो इब्न जियाद है। अब उसके जो जासूस गलियों में फिर रहे थे उन्होंने इब्न जियाद के मुजालम बयान करने शुरू कर दिए, ये बहुत जालिम है, ये किसी को माफ नहीं करेगा, अब कूफे की गलियां लहू से भर जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब यहां कूफे में पहली तहरीक चल गई कि कमजोर दिल अफराद को उसका खौफ दिला के खामोश करवा दिया। खबर जनाब हानी को पहुंच गई। अब जनाब हानी मनसूबाबंदी तब्दील कर रहे हैं। जनाब हानी के घर में फौरी तौर पे एक मीटिंग कॉल की गई। फौरी तौर पे लोग जो जिनके पास अहम जिम्मेदारियां थी उन्हें बुलाया गया और बुला के कूफे के इस बदलते हुए मंजर के पेश नजर अपने मनसूबे तब्दील करने के लिए, हिकमत अमली पे गौर करने के लिए पहली एक बाकायदा मीटिंग तय हुई। इब्न जियाद ने सुबह उठ के मस्जिद आजम कूफा में खुतबा दिया और खुतबा देकर उसने कहा, कूफा वालों, मैं तुम्हें अमान देने के लिए आया हूं, लेकिन जो हुसैन के सफीर के हाथ में बैत करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसने बहुत दुश्मनी अहले बैत से भरी हुई तकरीर की और खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद ये चला गया। इसने अपने सिपाहियों से कहा, कहीं से मुझे खबर ला के दो कि मुस्लिम बिन नकील से कैसे मिला। खबर मिली, हानी के घर में जाके मिला। इसने कहा, हानी के घर में कैसे गया? लोगों ने इसे बात रखा कि हानी के घर में कतन न जाना, हानी के घर में जाने की कोशिश न करना, वो बहुत बड़े कबीले का फर्द है, बहुत बड़े कबीले का सरदार है, हजारों की तादाद में उसके मुहाफिज हैं, तेरी फौज उसके सामने टिक नहीं सके। इसने हिकमत अमली को तब्दील किया। इसने कहा, हानी को दरबार में बुलाओ। कासद जनाब हानी के पास जाता है। जनाब हानी कहते हैं, एक बहाना बनाते हैं, एक उज़र तराशते हैं कि मैं इब्न जियाद से कहो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और दरबारों में आने में अब मुझे कोई रगबत भी नहीं रही और ज्यादा देर में बैठ भी नहीं सकता, ज्यादा देर बिस्तर पे होता हूं, तो मैं इस मुलाकात के लिए नहीं आ सकता। ये एक बहाना था, ये एक उज़र था। जनाब हानी उस मलाउन के सामने नहीं जाना चाहते थे। खबर इसको दरबार में मिलती है तो ये कहता है कि अगर हानि नहीं आना चाहते तो मैं खुद इयादत के बहाने से हानि के घर। जब पता चलता है कि इब्न जियाद इयादत करने के लिए आना चाहता है, अब यहां पे जनाब हानी जनाब मुस्लिम बिन नकील से कहते हैं कि देखें, मेरी बुजुर्गाना सलाहियतें, मेरी कूफा के हालात पे नजरें अच्छी तरह जानती हैं कि इब्न जियाद के सामने सिवाय चंद मुखलसीन के अलावा कोई नहीं टिकेगा। ये जो लोग रोजाना आपके पास आके बैठ के कस्में देते हैं, ये सब चले जाएंगे। मेरा मशवरा यह है कि इब्न जियाद आ रहा है मेरे घर इयादत कर। जब वो मेरे घर इयादत के लिए आए, आप पर्दे के पीछे छुप जाए और पीछे से आके वार करके इसे कत्ल। इब्न जियाद का कत्ल ले लूंगा मैं अपने साथ। मेरा खानदान बहुत बड़ा है, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन अगर ये कत्ल हो जाएगा तो इसके बाद फिर हमारे रास्ते में कोई रुकावट। ये इतनी जल्दी बात हो रही थी या इतनी देर में खबर हुई कि दरवाजे पे इब्न जियाद पहुंच गए। जनाब मुस्लिम अभी ये बात कर रहे थे। जनाब मुस्लिम पर्दे के पीछे चले जाते हैं। इब्न जियाद मलाउन आके बैठ जाता है। जनाब हानी से इयादत करता है, खैर वाफियत पूछता है। जनाब हानी अरबी में एक शेर पढ़ते हैं जनाब मुस्लिम को मतवज्जे करने के लिए, लेकिन जनाब मुस्लिम बाहर नहीं आता। जनाब हानी अपने सर से अमामा उतार के रखते हैं इशारा देने के लिए। जनाब मुस्लिम फिर नहीं आता। आखिर इब्न जियाद के साथ उसका मेहरान नामी एक गुलाम था, वो इस नकलो हरकत से
खौफजदा हो जाता है और इब्न ज़ियाद के कान में कहता है हमें उठना चाहिए, मुझे हालात ठीक नहीं लगते। इब्न ज़ियाद जल्दी करता है, वो उठ के जब चला जाता है, जनाब मुस्लिम पर्दे से बाहर आते हैं। जनाब हानी अफसोस के हाथ मलते हुए कहते काश अकील का बेटा आपने मेरे मशवरे पे अमल कर लिया होता। जनाब मुस्लिम देख के कहते कि तेरा मशवरा बहुत अच्छा था, अमल ना करने की दो वजह थी। उसने कहा कौन सी? फरमाया पहली वजह, मोमन कभी किसी को धोखे से कत्ल नहीं करता। आहा, क्या बात। हम हाशमियों के यहाँ शेवा है, हम कभी भी पुष्ट से वार नहीं करते। आहा, दूसरी वजह, वो तेरा मेहमान था। मेहमान के हकूक अल्लाह ने कुरान में रखे हुए हैं। काफिर था, मलाउन था तेरा मेहमान। तेरे मेहमान की इज्जत रखना मेरा फर्ज था। कहां से लाएगी दुनिया अहले बैत जैसे कमाल और फजाइल। दुनिया ने तो अहले बैत के मेहमान होने का ख्याल नहीं रखा, लेकिन इन्होंने कातिल को भी शरबत पिलाया है। इन्होंने अपने कातिल को भी अपने घर से इसलिए छोड़ा है कि वो मेहमान है। इन्होंने भाई के कातिल को खाना। बहुत लंबी तारीख है, इसको एक मजलिस में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। अशरा हो तो जनाब मुस्लिम बिन नकील की सवाने हयात पड़ी जाए। खैर हानी बिन उर्वा के घर से जब इब्न ज़ियाद उठ के चला जाता है, इब्न ज़ियाद के जाने के बाद हानी बिन उर्वा को दोबारा दरबार में बुलाने का मशवरा किया जाता है। मशवरा करने के लिए 4 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि तुम चारों लोग जाके जनाब हानी को इस बात की यकीन दहानी करवाओ कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। उन 4 लोगों में से एक शख्स जो है उसको इब्न ज़ियाद के मलाउन के अंदरूनी इस हिकमत का नहीं पता होता, इस खबासत के बारे में लाइल्म होता है। वो समझता है कि शायद ये हानि को अमान देना चाहता है। वो 4 लोग जाके अपना हलफ और अपनी कसम देके अपनी जिम्मेदारी के साथ जनाब हानि को लेके आते हैं। उससे पहले इब्न ज़ियाद अपने गुलाम मुवक्कल नामी को भेजता है कि किसी न किसी तरीके से मुस्लिम तक पहुंचे। ये शख्स जो है ये आके जनाब मुस्लिम के करीबी साथियों से मिलता है और उन्हें कहता है कि मुझे जनाब मुस्लिम तक कुछ रकम पहुंचानी है, क्योंकि मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूं और मैं ये रकम उन तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि वो जितना जंगी असला खरीद रहे हैं उसमें मेरी तरफ से हिस्सा हो। इस तरीके से वो कुर्बत लेता लेता एक लंबा वाकया है। खैर वो वहां तक पहुंच जाता है और वो पहुंचने के बाद इसको जनाब मुस्लिम के पास हर मीटिंग में ये सबसे पहले जाता है, सबसे आखिर में उठ के आता है। जनाब हानी के घर में होने वाली तमाम मीटिंग्स का ये चशमदीद गवाह होता है और ये भेस बदल के रोजाना जनाब मुस्लिम से मिलने के लिए जाता है। अब जब जनाब हानी को दरबार में बुलाया जाता है तो इब्न ज़ियाद से कहता है कि आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मुस्लिम आपके घर में, क्योंकि वो हुकूमत के बागी हैं, मुझे मुस्लिम चाहिए, आप मुझे बताएं मुस्लिम आपके घर में है। जनाब हानी इनकार कर देते हैं कि मुस्लिम मेरे घर में। ये झूठ नहीं था, इमाम के नुमाइंदे को बचाने के लिए एक तकिया भी था और दूसरा राज ये था कि जनाब हानी ने कहा था कि मुस्लिम मेरे घर में नहीं है, क्योंकि हानी जानते थे कि मेरा घर जो है वो इमाम की मलकी है। तो मुस्लिम मेरे घर में नहीं, मुस्लिम अपने ही घर में। जब जनाब हानी इनकार करते हैं तो ये फिर कहता है कि तुम बहुत बड़े कूफा के सरदार हो, मैं तुमसे इस जवाब की तवक्को नहीं करता था। जनाब हानी फिर इनकार करते हैं तो पीछे से इशारा करता है। वही गुलाम जो रोजाना जनाब हानी के घर मीटिंग्स में बैठा होता है वही पीछे से निकल आता है और निकल के आके जब जनाब हानी उसका चेहरा देखते हैं तो अब जनाब हानी जो है वो अपना बयान तब्दील करके कहते हैं कि हाँ मुस्लिम मेरे घर में। तो कहता मुस्लिम मेरे हवाले करो, फिर मैं कभी हवाले नहीं करूंगा। एक बहुत लंबी बहस और बहुत लंबी तकरार होती है। इसी बहस और तकरार में ये मलाउन सीखपा हो जाता है। गुस्से में आके अपने सिपाही को इशारा करता है। वो सिपाही जनाब हानी के चेहरे पे छड़ियां मारने शुरू करता है। इतनी छड़ियां मारता है कि जनाब हानी का नाक की हड्डी टूट जाती है, दंदाने मुबारक टूट जाते हैं। जनाब हानी का चेहरा लहू से भर जाता है। जनाब हानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके जब कैद खाने में डाल दिया जाता है तो खबर जब बाहर पहुंचती है तो इनके कबीले के लोग, बनी मुज़ब्बे के लोग जो हैं वो बाहर पहुंचते हैं। जब इनके कबीले के लोग बाहर पहुंचते हैं, कबीला बनी मजहज के लोग, तो बनी मजहज के उन लोगों को वापस भेजने के लिए ये कूफे के मरकजी काजी, जो कूफे की मरकजी अदालत का चीफ जस्टिस था, काजी शुरैह, उसकी मुआवनत लेता है। काजी शुरैह जो है वो दरबार के कसरे दारुल उमारा की छत पे जाके कुरान सर पे रख के गवाही देता है कि
हानि को अमान है और हानि खैर वाफियत से है। वो इब्न ज़ियाद के साथ मुख्तलिफ अमूर तय कर रहा है, थोड़ी देर में हानि बाहर आ जाएगा, लिहाजा वो जुलूस को वापस भेज देता है। जो ही वो जुलूस वापस पलटता है तो कबीला बनी मजहज जो जनाब हानि का कबीला है, उसी के कबीले के बाद अफराद को ये खरीद लेता है, ये कह के हानि तो बूढ़ा हो चुका है, कितनी देर इसकी सरदारी में चलोगे, अगर तुम मेरी बात मान लो तो हानि के कत्ल के बाद बनी मजहज की सरदारी भी तुम्हें दे दूंगा, बैतुल माल में खजाने भी दूंगा, तुम हुकूमत को कोई पैसा भी नहीं दोगे और तुम्हें अहम जिम्मेदारियां भी दे दूंगा। लिहाजा कबीले के वो सरकर्दा अफराद जो हैं वो अक्सरियत को जाने से मना कर देते हैं और जनाब हानि को दरबार में शहीद कर देता। जो ही जनाब हानि की शहादत की खबर जनाब मुस्लिम तक पहुंचती है, इंतकाम हानि लेने के लिए जनाब मुस्लिम क्याम करते हैं। क्याम करने के लिए अब सबसे ज्यादा तादाद तो जनाब हानि के खानदान के लोगों की मुस्लिम को हासिल थी, लेकिन उनमें से अक्सरियत बिक चुकी थी, कुछ डर चुके थे। जब जनाब मुस्लिम क्याम करते हैं तो जनाब मुस्लिम का क्याम जो है भरपूर क्याम होता है, लेकिन एक खबर जनाब मुस्लिम के लश्कर में फैल जाती है कि बेशक तुम इस वक्त तादाद में ज्यादा हो, लेकिन खबर मिली है कि शाम से ताजा फौजों का दस्ता कूफे के करीब पहुंच गया, वो अनकरीब कूफे पे हमला करने वाले, और जो जो मुस्लिम का साथ देगा उनके घरों को जला दिया जाएगा, उनकी औरतों को कनीज बना के बेच दिया जाएगा, उनके बच्चों को उल्टा लटका दिया जाएगा। क्या फायदा है, हुसैन खुद तो कूफे आए नहीं और तुम्हें कत्ल करवा देंगे। ये एक ऐसी फितना अंगेजी, ऐसी शर अंगेजी और ऐसे मुकद्दस नुमा लोग फैलाते हैं कि जो लोगों को हुज्जत की नुसरत से दूर कर देते हैं। बस अब आप जो ही ये आप इन तमाम जितना भी मैं मंजर आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप इसको इस दौर में भी देखिएगा, कितने अफराद हैं जो आज भी आपके नजरियात को कुचलते हैं, आपको जिंदगियों से मोहब्बत दिलवाने के लिए आपके अंदर से हुज्जत की मार्फत और इमाम की नुसरत खत्म कर। खैर, जब जनाब मुस्लिम आहिस्ता आहिस्ता हत्ता के एक मखसूस तादाद रह जाती है तो उनकी औरतें जो है वो बाजार में आके उनको लेने के लिए आ जाती हैं, उतरो घोड़ों से, चलो घरों को वापस, शाम के फौजी पहुंचने वाले हैं, हमारे घर क्यों बर्बाद कर। आखिर नमाज इशा पढ़ के जब जनाब मुस्लिम सईद शुक्र करके पीछे देखते हैं तो मुस्लिम तन्हा है। कूफा घरों में पहुंच गया और हुसैन का सफी तन्हा रहे। आज भी यजीदी फिक्र, दुनियावी हवस, नजरियात पे कंप्रोमाइज करने वाले लोग आज भी हुसैन के कई सफीरों को तन्हा कर, तन्हा मुस्लिम बिन अकील, कूफा की गलियां और लोगों के घरों के दरवाजे बंद हो चुके। हाथ में वो तलवार है जो हुसैन इब्न अली ने 10 रमजान को मक्का से निकलते हुए दी थी। जनाब मुस्लिम बार बार कहते हैं कि मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं, लेकिन डर है कहीं हुसैन कूफे ना आए। आखिर जनाब मुस्लिम चलते चलते, यहां पर मैं तज़किरा करूंगा कि जनाब मुस्लिम के साथ जनाब मुस्लिम के 2 बेटे भी आए थे, तिफलान मुस्लिम मोहम्मद और इब्राहिम। आज भी आप इराक जाएं तो आज भी आपको करबला के मज़ाफात में मुसैयब नामी जगह पे उन 2 शहजादों की कब्रें देखने को। ये दोनों शहजादे बाप के साथ गए थे। जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद इन्हें कैद कर लिया जाता है और 1 साल बाद वाक़या करबला गुजर जाने के बाद इन्हें शहीद किया जाता है। इनकी शहादत दर्दनाक तरीन शहादत है। जनाब मुस्लिम तन्हा रह जाते हैं। जनाब मुस्लिम तन्हा चलते 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 एक ऐसी गली में पहुंचते हैं जिस गली को आगे दीवार है और रास्ता नहीं। जो ही जनाब मुस्लिम उस दीवार के पास पहुंचते हैं तो एक मस्तूर है जो अपने घर का दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि मेरी गली में एक ऐसा शख्स है आ रहा है जिससे खबर ही नहीं है कि गली आगे से बंद है। उसे पता चल जाता है ये कोई अजनबी है। अगर ये कूफे का रहने वाला होता तो कूफे के रहने वालों को पता था कि ये गली आगे से बंद है। वो अपने दरवाजे के बाहर झांकती है, झांक के देखती है कि एक शख्स है जो उस दीवार के पास लग के जमीन पर बैठ। वो वहीं से आवाज देकर दिया, बंदा खुदा, ये गली बंद है। हम मुस्लिम कहते हैं मैं जानता हूं ये गली बंद।
کہ لگے جا اپنے گھر واپس پلٹ جا, تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات خراب ہو گئے ہیں, نیا گورنر آ گیا ہے, شام کے سپاہی کوفہ کے باہر پہنچنے والے ہیں. جناب مسلم دیکھ کے کہتے ہیں اے کنیز پروردگار تیرا مشورہ بڑا بہتر ہے, لیکن جس کا گھر کوئی نہ ہو وہ کہاں ہے؟ کنیز دیکھ کے جس کا نام طوع ہے. ذرا آج کی اس مجلس سے میرے سامعین و ناظرین یہ نتیجہ نکالیے گا, جنہوں نے وفا نہیں کی ان کے ناموں کا بھی کسی کو نہیں پتا, اور جس نے چند گھنٹے کے لیے مہمان رکھا, آج جب مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے تو اس مستور کا نام لیا جاتا ہے. توانامی مستور دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی کیا تم کوفہ کے رہنے والے نہیں؟ فرمایا نہیں. کہنے کہ کوفہ کے باہر کہیں سے آئے ہو؟ آئے سے. کہتے پھر مسجد میں جا کے سو جاؤ. جب مسلم کہتے اگر کوئی اللہ کے گھر میں بھی نہ رہنے دے, کہتے جہاں بھی جا لیکن میری گلی سے چلا جا, میری گلی میں اجنبی سپاہیوں کے لیے میرے گھر کو مشکوک بنا دیں گے. جناب مسلم دیوار کا سہارا چھوڑتے ہیں, دیوار کا سہارا چھوڑتے ہوئے جناب مسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے, یا سیدہ فاطمہ تو زہرا. لفظ زہرا عورت کے کان میں پڑتا ہے, بند دروازے کو دوبارہ کھولتی ہے, جاتے ہوئے مسافر کی پیچھے سے کمر دیکھتی ہے, پیچھے سے آواز دے کہتی بندہ خدا دوبارہ بتا تو نے کس کا نام لیا؟ مسلم چہرے کو پھیر دیا اور پھیر کے کہتے کیا تو اس نام سے واقف ہے؟ کہتی تو نے نام لیا میرا جگر پھٹ گیا. کیا تو نے فاطمہ بنت محمد کا نام لیا؟ فرمایا اسی کے خاندان سے. کیا مطلب ہے, تو ہاشمی ہے؟ فرمایا ہاشمی نہیں, اولاد ابو طالب. تو کون ہے؟ کیا تو فرزند عقیل ہے؟ آواز آئی ہاں میں حسین کا سفیر مسلم. مسلم کا نام آنا تھا تو وہ دروازہ کھلا چھوڑتی ہے, بازار سے دوڑتی جا کے مسلم کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتی ہے قیامت والے دن زہرا سے میری شکایت نہ کرنا, مولا مجھے معاف کر دینا, مجھے خبر نہیں تھی, میرے مقدر کا مالک میرے دروازے پہ. مولا دیکھ کے کہتے ہیں, جناب مسلم دیکھ کے کہتے ہیں اے کنیز پروردگار تو نے غربت کی عالم میں میری خبر رکھی, میں تیری جنت کا دامن. یہ کہہ کے جناب مسلم اس کے ہاتھ سے اپنی ابا کا دامن چھڑانے لگتے ہیں, قدموں سے لپٹ کے دیکھ کے کہتی ہے مولا غلطی معاف نہیں کی. فرمایا ہم صادق ہیں, ہم اپنی زبان کے پکے ہیں, ہم اپنے قول اور اپنے عہد کے پکے ہیں. جب میں نے کہہ دیا میں تیری جنت کا دامن ہوں, کیا تیری جنت کی ضمانت دے کے جا رہا ہے؟ کیا میرے گھر کو یہ شرف نہیں بخشے گا کہ میں ایک رات آپ کی خدمت کروں؟ جب مسلم منع کرتے ہیں تو وہ دیکھ کے کہتی جس کا نام لیا ہے تجھے اسی کا واسطہ. جناب مسلم کی داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی ہے, روتے ہوئے مسلم طوا کے گھر آتے ہیں. طوا کو اپنے گھر میں وہ مناسب جگہ نہیں مل رہی ہوتی جہاں جناب مسلم کو بٹھائے, آخر ایک کمرے میں جناب مسلم کو بستر لگاتی ہے. جناب مسلم دیکھ کے کہتے ہیں اب کوفہ میرے بستروں میں لیٹنے کے لائق نہیں رہا. جناب مسلم مصلی عبادت بچھاتے ہیں, عبادت شروع کرتے ہیں. پوری رات طوا دروازے میں بیٹھی رہتی ہے, اور جناب مسلم کے مصلی سے تکبیر و تحلیل اور رونے اور تسبیح کی آوازیں آتی. تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا, نام اس کا بلال ہے, یہ ملعون ابن زیاد کے سپاہیوں میں سے ہے, یہ گھر پہنچتا ہے. ماں اسے مہمان کے بارے میں بتاتی ہے, یہ خبر ابن زیاد کے دربار میں دے دیتا ہے, جس کو ڈھونڈ رہے وہ ہمارے گھر میں, کیونکہ ان کا گھر کوفے کے آبادی کا آخری گھر تھا. پورا کوفہ چھوڑ کے مسلم کو آخری گھر میں پناہ ملی. فوجوں کا تازہ دستہ اس گلی میں پہنچتا ہے. جو اس بازار میں کوفے کی فوجوں کا تازہ دستہ پہنچتا ہے, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز, تلواروں کا شور مسلم کے کان میں پڑتا ہے. جناب مسلم مصلی کے نیچے تلوار کھینچتے ہیں, مسلم تلوار کھینچتے ہیں. طوا سامنے آگے کھڑی ہو جاتی ہے, رو کے کہتی ہے تجھے سیدہ کا واسطہ, مولا وہ زیادہ ہے, تو اکیلا ہے. جب مسلم دیکھ کہتے کیا کروں؟ کہتی میں گھر کا دروازہ بند کرتی ہوں, مولا باہر نہ جائیے گا. جب مسلم دیکھ کہتے اگر میں باہر نہ گیا تو فوجیں تیرے گھر کے اندر آ جائیں گی. کہنے لگی آنے دے فوجیں, مجھے زندگی کی پرواہ نہیں. جب مسلم دیکھ کہتے تجھے زندگی کی پرواہ نہیں, لیکن میں ہاشمی ہوں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میری موجودگی میں تیرے گھر میں فوج آ جائے, میں قیامت والے دن جناب سیدہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہمیں جناب مسلم آپ نے کوفہ میں ایک مومنہ کے گھر فوج نہیں آنے دی. شام غریب علی کی بیٹی کا خیمہ تھا, اور یزید کی فوج کا دستہ تھا, اور حسین کا قاتل زینب کے خیمے کے اندر کھڑا. نہ مسلم نکیر بازار میں آتے ہیں, علی کی تلوار, علی کا روب, آنکھوں میں ابو طالب کا روب, ایسا زوردار حملہ ہوتا ہے, کوفے کی گلیاں لہو سے بھر جاتی ہیں.
एक एक को गिरेबान से पकड़ के कूफे की छतों पे फेंक रहा है जनाब मुस्लिम बिन अकील इतना कर्जदार हमला किया कि कूफे के बाजार लहू से भर गए। दोबारा दारुल अमारा में पैगाम गया कि ताजा फौज भेजो। वो कहता अभी तो मैंने फौज का दस्ता भेजा था। कहा वो तो सारा मुस्लिम ने मार दिया। कहने लगा अकेला मुस्लिम है या साथ कोई सिपाही भी है? फरमाया अकेला मुस्लिम है। कहने लगा अकेला मुस्लिम और गिरफ्तार नहीं हो रहा? तो वो सिपा सलार कहता है तूने हमें कूफे के किसी बनैये को नहीं, तूने हाशमियों के फर्जंद को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। उसने कहा फिर हाशमी जो है ये तलवार से नहीं मारे जाते, ये धोखे से मारे जाते हैं। बस मैंने तो पहले बताया था, ये बाजार, ये गलियों का शहर था। जिस गली में जनाब मुस्लिम थे वो गली आगे से बंद थी, ये दूसरी गली में मुस्लिम को धकेलते हैं। धकेलने के बाद उस गली में गड़ा खोदते हैं, उसको ऊपर से भर देते हैं। जो ही जनाब मुस्लिम का पांव उस गड़े में जाता है, जनाब मुस्लिम गड़े के अंदर गिरते हैं। जो ही जनाब मुस्लिम गड़े के अंदर गिरते हैं, जिसके हाथ में पत्थर है वो पत्थर मारता है, जिसके हाथ में तीर है वो तीर फेंकता है, जिसके हाथ में नेजा है वो नेजा मारता है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है वो गर्म पानी ला के मुस्लिम पे फेंकता है। अकेला मुस्लिम गड़े में कह रहा है काश आज मेरा अकबर होता, काश आज मेरा गंजी होता, काश आज मेरा कासम होता। जरा मुस्लिम को जख्मी हालत से गड़े से निकाला जाता है। मुस्लिम के हाथों में रस्सियां पहनाई जाती हैं, पाँव में रस्सियां पहनाई जाती हैं। इसी हालत में मुस्लिम को दारुल अमारा लेके जाया जाता है। जो ही मुस्लिम दारुल अमारा पहुंचते हैं, ये मलाउन इब्ने ज़ियाद, खुदा इस पे लानत करे, ये तख्त पे बैठा है, ये अपने तख्त की सीढ़ियां उतरता है। ये तख्त की सीढ़ियां उतर के, मुझे जुबान इजाजत नहीं देती, ये मुस्लिम के करीब पहुंचता है। जहाँ मुस्लिम के अबरू कट चुका था, जहाँ मुस्लिम के होंठ कट चुके थे, जहाँ मुस्लिम का दांत टूट चुका था, मुस्लिम सर से लेके पांव तक जख्मी थे, ये मलौन मुस्लिम के करीब आता है। ये अपने हाथ मुस्लिम की जुल्फों में डालता है। ये जनाब मुस्लिम की जुल्फों पे हाथ डाल के मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारता है। इधर जनाब मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा लगता है, इधर मुस्लिम की यतीमा बेटी जमीन पे गिरती है, रो के कहती है अम्मा मैंने अभी ख्वाब देखा है, मेरा बाबा जमीन पे गिर गया है। जनाब हुसैन इब्ने अली खेमे में जाते हैं, मुस्लिम की बेटी को अपने सीने से लगा लेते हैं। या थोड़ी देर के बाद इब्ने ज़ियाद पूछता है तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? जहाँ मुस्लिम कहते हैं महामीर सवाइल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। इतना जुमला कहना था, हुसैन इब्ने अली की चीख निकलती है, रो कहते मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कह के सलाम किया है। जहाँ बतूल के बेटे का वादा है, क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम कहेगी। जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले जाया जाता है। जनाब मुस्लिम अपनी वसीयतें करते हैं। वसीयतें करने के बाद जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे जो ही जल्लाद अपनी तलवार को निकालता है, मुस्लिम सर झुकाते हैं। मुस्लिम का सर झुका हुआ देखना था। हुसैन इब्ने अली रेत उठा के अपने चेहरे पे डालते हैं। अब्बास इब्ने अली करीब आते हैं, रो के कहते हैं मौला तेरे रोने की वजह क्या है? फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास देख के कहते हैं मौला को दारुल अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसके होंठ कटे हुए हैं, मौला जल्लाद की नंगी तलवार है। आवाज आई अब्बास पहचान ये कौन है? अब्बास रो कहते हैं मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई? आवाज आई हाँ ये रुकैया का सुहाग मुस्लिम बिन अकील है। मुस्लिम का नाम आना था। अब्बास का एक हाथ तलवार के दस्ते पे, दूसरा हाथ हुसैन के कदमों पे, रो के कहता तुझे तेरी माँ का वास्ता, जमीन की तनाबे खैन मुझे कूफे पहुंचा। फरमाया कूफे जाके क्या करेगा? फरमाया मैं मुस्लिम को बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक बार लाशा अपने हाथों पे उठा लूं। तलवार तो चला नहीं सकता, लेकिन एक दफा सर तो अपने हाथों पे ले लूं। हुसैन इब्ने अली की आवाज आई ए अब्बास क्या तूने मेरे मुस्लिम को तनहा समझा है? अब जरा जमीन पे देख। जो ही उंगलियां जमीन की तरफ आती हैं, जनाब अब्बास अपना चेहरा फेर लेते हैं। हुसैन इब्ने अली की आवाज आती है अब्बास बताइए क्या देखा? फरमाए एक काले बुरके वाली मस्तूर है जो कूफा की गली में दारुल अमारा की दीवार के नीचे बैठी है और गोद फैला के कह रही आ मेरे हुसैन का बेटा, आ मेरे हुसैन का सफीर बेटा, आ मेरे हुसैन का वकील बेटा। खुदा जनाब मुस्लिम के कातिलों पे लानत फरमाए, खुदा बेवफाई करने वालों पे लानत फरमाए, हुसैन का साथ देने से इनकार करने वालों पे लानत फरमाए, और अनगिनत दरूद और सलाम जनाब मुस्लिम पे, जनाब मुस्लिम के असहाब पे, जनाब मुस्लिम के साथियों पे, उन जानसारों पे लाखों करोड़ों सलाम और अनगिनत खुदा की रहमतें जनाब हानी बिन उर्वा पे, मुख्तार सकफी के आबस शाकरी पे, उन तमाम जय्यद असहाब पे जिन्होंने कूफा से हुसैन इब्ने अली का साथ दिया। मौला मेरा और आपका शुमार नासरीन इमाम ज़मान में फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।